Good morning, dear students. I am your maths teacher for class 5 and today we are going to discuss exercise 2.2 page number 36. Okay student, note down your page number. Page number is 36 and exercise is 2.2. In the previous class, we have discussed the LCM by prime factorization method, and today we are going to discuss the second method through which we can find out the LCM is division method. Okay students, today we are going to discuss the LCM by division method. So we are going to start the first question now. The first question is 16, 24 and 30. Okay? And 16, 24 and 30, and we are going to solve this question with the help of LCM by division method. Okay students, question, write the question 16, 24 and 30, and the question demand of the question is that find this LCM but by which method? By division method. Okay student, आप जब किसी भी मेथड से LCM को फाइंड आउट करते हैं, आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो सेम होगा, बट आपको क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है थ्रू जिस मेथड से आपको कहा जाता है, आपने उसी मेथड से उसको सॉल्व करना है. अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है. एंड अगर आपसे डिमांड की जाती है इन योर क्वेश्चन दैट फाइंड आउट द LCM बाय डिवीजन मेथड, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस मेथड. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज 16, 24 and 30. We can also find this question with the help of prime factorization method, but here the demand of the question is that find the LCM by division method. Okay students, so आप लोग फर्स्ट टाइम जो है ये डिवीजन मेथड कर रहे हैं. ठीक है, आप लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, क्लास 4 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन इन क्लास 5. द मेथड इज सो इजी. ओके, इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम सेपरेटली हर एक नंबर की फैक्टराइजेशन कहते हैं, बट हियर इन डिवीजन मेथड हम लोग एक ही लेडर के अंदर सारे नंबर्स को एक ही साथ सेम जो है नंबर पे डिवाइड करते हैं. ठीक है, राइट द नंबर फर्स्ट इन योर लेडर. राइट द थ्री नंबर 16, 24 एंड 30. दिस इज अ क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, नाउ विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स हमने क्या करना है, हमने इन नंबर्स को चेक करना है दैट ईदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल और नॉट. ठीक है, तो द फर्स्ट प्राइम नंबर और द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 2. 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कहते, 1 इज अ क्रो प्राइम नंबर. The prime number starts from 2. So 2 is the first prime factor of any number. Okay students, first of all आप किसी भी नंबर को चेक करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, तो आप स्टार्ट करते हैं 2 से. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक दैट ईदर दीज नंबर्स 16, 24 and 30 आर डिविजिबल बाय 2. इफ दे आर डिविजिबल, write their quotient, and if they are not divisible then write the number as it is. ठीक है, हमने उस नंबर को as it is लिखना है if they are not divisible or present in the table of 2. Okay students, so we will start from the table of 2 as 2 is the first prime factor of any number. So start करें, हमारे पास जो है 2 से स्टार्ट करें. we know that 2 8s are 16. ठीक है, 2 8 इट मीन्स कि 2 के टेबल में 16 प्रेजेंट है. 16 हमारे पास 2 के टेबल में आता है. 2 8s are 16. 2 8s are 16. Move to the next number girls. The next number is 24. Yes, all the even numbers are divisible by 2. All the even numbers are divisible by 2. Check the divisibility rules that you have done in your class 4. Okay, so yes, all the even numbers and those numbers which have their unit place ones or any even number, they are divisible by 2. We know that very well. So the number is 24. So yes, 24 is divisible by 2 because the last or the ones place of this digit is 4. So 2 12s are 24. 2 12s are 24. The next number, now check the next number. The next number is 30. Yes, the ones place of this number is 0. It means that this number is also divisible by 2. So we know that 2 15s are 30. 2 15s are 30. Okay students, now यहाँ पे हमारी डिवीजन कंप्लीट. नाउ डिवाइड होके जो हमारे पास क्वोशंट्स आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे उतार लिए हैं.
नाउ अब इन नंबर्स के साथ हमारा कंसर्न है, ठीक है। अब हमने इन नंबर्स को चेक करना है, तब तक हम 2 से आगे नहीं जाएंगे जब तक ऐसा कोई नंबर हमारे पास प्रेजेंट है जो कि 2 पे डिवाइड हो सकता है, बिकॉज 2 इज द फर्स्ट प्राइम फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 8, यस वी नो दैट 8 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जबकि तो 8 जो है वो 4 के टेबल पे भी आता है, बट हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमारे पास ये प्राइम फैक्टर के में जो है डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 2, दोबारा से हम 2 लेंगे, 2 4s are 8, next is 12, yes we know that 12 is also divisible by 2 because 12 is an even number, 2 6s are 12, but 15 is not divisible by 2 because 15 is not an even number. 15 को अगर आप चेक करें तो वो इवन नंबर नहीं है, एंड ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट इवन नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम 15 को एज इट इज यहाँ पे राइट करेंगे, 15 को हम एज इट इज यहाँ लिख लेंगे बिकॉज 15 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ अब हमारा कंसर्न इन नंबर्स के साथ है, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं। एक्सपेंड द लैडर जितनी आपको जरूरत है। ओके, अब गर्ल्स हम ये चेक करेंगे कि क्या अभी भी कोई ऐसा नंबर है जो 2 पे डिवाइड हो सकता है फर्दर। अगर हो सकता है तो हम 2 ही लेंगे। यस वी नो दैट 4 and 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो हम 2 ही लेंगे। 2 2s are 4, now 2 3s are 6 and 15 is not divisible by 2, so write the 15 as it is. Next, now 2 3 and 5, जब तक हमारे पास ऐसा नंबर कोई है जो कि 2 पे डिवाइड हो सकता है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जब तक हमारे पास जो है हमारा जो यहाँ से रिमाइंडर है वो 1 नहीं आ जाता, हमारी डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यस, 2 1s are 2, यहाँ पे हमारे पास 2 की डिवीजन कंप्लीट हो गई क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर में 1 आ गया है। नाउ 3 इज नॉट डिविजिबल, 15 is also not divisible by 2, so write them as it is. Okay students, expand the ladder. Now after 2, what is the next prime factor? The next prime factor is 3. After 2, the next prime factor is 3, so we will move to 3. Now check that either these numbers or these quotients are divisible by 3. Yes, we know that 1 को तो हम as it is क्योंकि इसकी हमारे पास डिवीजन कंप्लीट हो गई है। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 1s are 3. Now the number, यहाँ पे देखें 2 numbers की हमारे पास डिवीजन कंप्लीट हो गई है because 1 is the remainder. Now the last number or the last digit is 5. Now girls check करें क्या 5 3 के टेबल में आता है? No, 5 is not divisible by 3. 4 के टेबल में no, 4 is not a prime number. Next number is 5. Yes, 5 is a prime number. So all those prime numbers, ठीक है, जो भी आपके पास प्राइम नंबर्स आते हैं, कीप इन योर माइंड दैट प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव नो फैक्टर और डिवाइजर अदर देन 1 और द नंबर इटसेल्फ. So it means that 5 is a prime number, so it is divisible by itself. 5 ones are 5. ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर जब सबके 1 1 1 हमारे पास आ गए हैं, इट मीन्स दैट हियर हमारे पास डिवीजन कंप्लीट हो गई है. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वी विल, दिस इज द LCM, हमारे पास ये हमारी फैक्टराइजेशन है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी विल फाइंड आउट द LCM बाय डिवीजन मेथड. डिजायर्ड हमारा आंसर कैसे आएगा? जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, वी हैव फाइंड आउट द LCM विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. नाउ इन डिवीजन मेथड वी हैव टू मल्टीप्लाई all the prime factors and we will get the answer. Now LCM by division method. Now LCM by division method, how we will find out the LCM by division method? It's very easy, girls. Now multiply all the prime factors, okay, all the prime factors and get your desired result. Okay, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 and multiply 5. Write all the prime factors. Okay students, here are 1 2 3 4 5 6. We have 6 number of digits here. तो हमारे पास एक साथ इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इज डिफिकल्ट. तो आप क्या करें, इनको पेयर्स बना लें. आपकी मर्जी है, आपको जैसे इजी लगता है, बट पेयर बनाना इज इजी. 2 2s are
4, 4 2s are 8, multiply these numbers, 2 3s are 6, 6 5s are 30, ठीक है, 8 multiply by 30. So in your rough work, multiply 30 and 8. 8 zeros are 0, 8 3s are 24. So the LCM or the product by multiplying all these prime factors is equal to 240. Okay student, this is all about the LCM by division method. Now you can solve all the remaining questions with the help of this method. This method is very easy. You can also take the help from your book examples and through your today's lecture. So okay students, आपने जो है होप कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल इजीली जो है वो क्लियरली आपने अंडरस्टैंड किया होगा. दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन मेथड.